चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. Amal Gavison of Partnership Firms, open sum number 8, page number 63. So now see, Yudhishthira and Bhima equal partner in Pandav brothers. Duryodhana and Dushasana are partner in Kaurav brothers. Sharing profit and loss in the ratio of 3:2. So now we are given different kind of adjustment, and last paragraph में we are asked to give journal entry in the books of new firm, Mahabharat Brothers and prepare its balance sheet. चलो new firm में journal entry के लिए we are compulsorily required to prepare accounts in the books of old firm. तो सबसे पहले पांडव ब्रदर्स की बुक्स में पीएनएल एडजस्टमेंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. चलो सम नंबर 8. in the books of profit and loss adjustment account. Partners capital account. So now first transfer the balance of capital. Yudhishthira and Bhim's capital is given for 60,000, 80,000. Okay, now हमारा second step, distribute three reserves if any. Now look at the balance sheet. Liability side here given general reserve 30,000. Yudhishthira and Bhima are equal partner. So 30,000 rupees are to be distributed equally. So by general reserve account 15,000 rupees. So 30,000 rupees are distributed equally. चलो P&L एडजस्टमेंट प्रिपेयर करते हैं. रीड योर कॉस्ट एडजस्टमेंट. सी लैंड बिल्डिंग बी अप्रिसिएटेड बाय 50% and stock by 20%. Appreciation in the value is a profit. तो P&L एडजस्टमेंट में क्रेडिट होगा. चलो क्रेडिट हियर बाय land and building account
25,000 और स्टॉक अप्रिशिएट करना है 20%। चलो 25,000 का 20% मीन्स 5,000 रुपीज। चलो देन सेकंड एडजस्टमेंट, प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर will depreciated by 20 and 10%। depreciation means what? reduction in the value of asset, तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। चलो प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर की वैल्यू में जो रिडक्शन हुआ, डेबिट ओवर हियर टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो प्लांट इज गिवन टू अस 30,000, उसका 20% मींस 6,000 रुपीस। फर्नीचर टू बी depreciated by 10%, $20,000 का 10% मींस 2,000 rupees. Now third adjustment, provision for bad debts be made at the rate 5% on debtors. Bad debts reserve. Bad debts reserve is a loss. So 30,000 debtors are given to us, 5% BDR means 1,500 bad debts reserve. Now goodwill. So goodwill is valued at rupees 50,000. Goodwill account is to be raised. It is to be distributed among partner in their profit sharing ratio. The amount of goodwill is 50,000 to be distributed equally. That is 50,000, 25,000 to each partner. Goodwill 25. Now last adjustment, motor car is not to be taken by new firm. New firm has not taken over motor car. It realized 30,000 by Pandav brothers. देखो पांडव ब्रदर्स ने मोटर कार सेल की। इसका मतलब इतनी कैश बैलेंस विल इंक्रीज। सी कैश बैलेंस आपको दी गई है 15,000 plus 30,000 realized for motor cars. So in the new firm cash balance to be transferred by Pandav brothers will be rupees 45,000. Now see the balance sheet, value of motor car is given to us 50,000. Rupees 30,000 is realized, means 20,000 is the loss. So it is to be debited here, right here to motor car account. ₹29,500 minus 30,000. Credit total is 30. चलो तो 500 रुपीस का प्रॉफिट होगा। Credit total is more, so we have to write the bigger total on the both sides. चलो 500 का प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो तो प्रॉफिट ऑफ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों पार्टनर्स के बीच में। ट्रांसफर इट टू द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ₹250 each.
कैपिटल अकाउंट क्लोज करो, क्लोज डाउन कैपिटल अकाउंट, फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड ट्रांसफर इट टू द न्यू फर्म। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बैलेंस कहां पर ट्रांसफर होगी? न्यू फर्म के अकाउंट्स में। तो टू महाभारत ब्रदर्स अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बैलेंस आएगी 1,250 and 90,250। चलो ठीक है। अब नाउ लेट अस प्रिपेयर बोथ द अकाउंट्स फॉर कौरव ब्रदर्स। चलो आपको ड्रॉ करना है, आई विल डिक्टेट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दिस टू अकाउंट्स, P&L adjustment and partners capital in the books of कौरव ब्रदर्स। चलो कौरव ब्रदर्स में दोनों अकाउंट्स ड्रॉ कर लो। यस, इन द सेम लेंथ की ड्रॉ करो, इतने ही एडजस्टमेंट से उसमें भी एक दो कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, सो यू नीड नॉट वरी। चलो हो गया ड्रॉ। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑन द क्रेडिट साइड। चलो क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट की बैलेंस ट्रांसफर कर दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 and 30,000 rupees। चलो हो गए बैलेंस ट्रांसफर। ओके, अब सेकंड स्टेप। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या है? डिस्ट्रीब्यूट फ्री रिजर्व्स अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में फ्री रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सी वी हैव जनरल रिजर्व 10,000, टर्न ओवर द पेज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन टू अस 3:2। चलो 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों पार्टनर के बीच में 3:2 के रेशियो में। तो 6,000 and 4,000 rupees। राइट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व 6,000 and 4,000 rupees। चलो जनरल रिजर्व ट्रांसफर हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कौरव ब्रदर्स के एडजस्टमेंट्स 1 by 1 दो। लैंड बिल्डिंग दी अप्रिशिएटेड बाय 30% एंड स्टॉक बाय 10%। चलो दोनों की वैल्यू एप्रिशिएट करनी है। दोनों की वैल्यू एप्रिशिएट होगी मतलब क्या होगा? इट्स अ प्रॉफिट। तो P&L एडजस्टमेंट में क्या होगा? दोनों क्रेडिट होगा। चलो P&L एडजस्टमेंट में क्रेडिट कर दो बाय लैंड बिल्डिंग एंड बाय स्टॉक अकाउंट। Okay, now second adjustment, plant machinery and furniture be depreciated by 30 and 20% respectively। चलो प्लांट मशीनरी और फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन करना है। डेप्रिसिएशन मींस व्हाट? रिडक्शन इन दी वैल्यू। तो रिडक्शन इन दी वैल्यू मतलब क्या होगा? P&L एडजस्टमेंट में इट इज अ लॉस। लॉस मतलब क्या होगा? डेबिट होगा। तो P&L एडजस्टमेंट
machinery account, and 2 furniture account. Plant and machinery to be depreciated by 30 and furniture by 20%. जो भी वैल्यू दी गई उसका 30% और 20% कंसीडर करके उसको डेबिट करना है। चलो डेबिट बोथ ऑफ इट। तो सी प्लांट एंड मशीनरी का 30%, 35,000 का 30% मींस 10,500 रुपीस, फर्नीचर का 20% मींस 6,000 रुपीस आर टू बी डेबिटेड टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो हो गया दोनों। ओके, नाउ रीड योर थर्ड एडजस्टमेंट। Debtors are to be valued at 15,000. Look at your balance sheet. See what is the amount of debtors given to us. So it is 18,000 rupees. अब उसकी न्यू वैल्यूएशन कितनी हुई है? 15,000, मतलब 3,000 रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ डेटर्स। इट इज अ लॉस। चलो P&L एडजस्टमेंट में डेबिट करो टू बैड डेट्स अकाउंट 3,000 रुपीस। बैड डेट्स अकाउंट 3,000। ठीक है, अब गुडविल एक्सेट्रा कुछ भी दिया गया नहीं है। अब इनकी सिमिलर पैटर्न P&L एडजस्टमेंट क्लोज करो। सी यू विल गेट अ लॉस ऑन द क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल में लॉस कहां पर ट्रांसफर होगा? डेबिट साइड में। चलो देन क्लोज डाउन द पार्टनर्स कैपिटल एंड ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल टू न्यू फर्म, दैट इज टू महाभारत ब्रदर्स। चलो ये दोनों कंप्लीट कर लो। सबसे पहले क्लोज डाउन P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, फाइंड आउट द लॉस एंड देन फाइंड द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, ट्रांसफर इट टू न्यू फर्म। चलो हो गई होल प्रोसेस। ओके, नाउ सी रीड योर सेकंड लास्ट पैराग्राफ। वी आर गिवन दैट कैपिटल ऑफ न्यू फर्म will be rupees 2,50,000 which will be provided by partner in their profit sharing ratio of 4:3:2:1। ठीक है, चलो तो अब न्यू फर्म के बुक्स में हमें दो अकाउंट्स प्रिपेयर करने हो, एक पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा केस। बिकॉज सपोज if any of the partner has surplus capital, so he will withdraw cash. If any of the partner has deficit capital, then he will bring in cash. तो केस की एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या करना होगा? केस अकाउंट इज आल्सो टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, चलो तो इन दी बुक्स ऑफ महाभारत ब्रदर्स हेडिंग दे दो। इन दी बुक्स ऑफ महाभारत ब्रदर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको प्रिपेयर करने में 4 कॉलम्स, बिकॉज नाउ देयर आर 4 पार्टनर युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन एंड दुशासन। पांडव ब्रदर्स के भी 2 पार्टनर आएंगे, कौरव के भी 2 पार्टनर आएंगे, तो महाभारत ब्रदर्स में हमारे पास 4 पार्टनर होंगे। चलो सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लो विद 4 कॉलम। देन आई विल गिव यू द फर्दर गाइडेंस दैट हाउ टू डू इट।
चलो हो गया है कंप्लीट। ओके चलो अब देखो यहां पर ये जो क्लोजिंग बैलेंस मिली, दिस क्लोजिंग बैलेंस विल बी ओपनिंग बैलेंस इन दी बुक्स ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म में ये बैलेंस क्या होगी? ओपनिंग बैलेंस होगी। चलो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। युधिष्ठिर ड्रीम किया है कि 1 लाख 250 90,000 250। दुर्योधन दुशासन का कैपिटल अकाउंट आपने प्रिपेयर किया है, उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस मिली उसको यहां पर ले लो ओपनिंग में। चारों पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले तो कैरी फॉरवर्ड करो। ठीक है, अब सिर्फ 5 लाख का कैपिटल अकाउंट नीडेड है, तो आफ्टर फाइनेंस ड्रॉ 1 केस अकाउंट। केस अकाउंट एक ड्रॉ कर लो। यस, उसमें भी आपको 5 लाइन ही ड्रॉ करनी है। सो ड्रॉ 1 केस अकाउंट। उसमें सिर्फ 2 ही कॉलम आएगी, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। उसमें कोई ज्यादा कॉलम्स आती नहीं है कभी भी। न्यू फर्म के बुक्स में हो या ओल्ड फर्म के बुक्स में हो, केस अकाउंट विल रिमेन सेम। चलो अब केस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितनी लिखनी है? ठीक है, ध्यान इधर कॉन्सेंट्रेट करो। सी पांडव ब्रदर्स में हमें केस बैलेंस दी गई है 15,000 15,000 दी है। उसने मोटर कार सेल की, फिर एडजस्टमेंट उसका रीड करो 30,000 की मोटर कार सेल की। तो इसका मतलब कि 45,000 इज द बैलेंस ऑफ पांडव ब्रदर्स एंड 12,000 इज द बैलेंस ऑफ कौरव ब्रदर्स। तो 45 प्लस 12 मतलब कि केस अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस होगी 57,000। केस इज एन असेट। असेट की ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज कैसी होगी? डेबिट होगी। चलो केस अकाउंट में डेबिट साइड शो करो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 57,000 रुपीस। चलो हो गया इतना प्रोसीजर। ओके, अब सेकंड लास्ट पैरा रीड करो। सेकंड लास्ट पैराग्राफ। सी कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 2,50,000। चलो न्यू फर्म में टोटल कैपिटल रखनी है 250 and it will be provided by partner in the profit sharing ratio 4:3:2:1। चलो 4:3:2:1 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक वर्किंग नोट दे दो, वर्किंग नोट दे दो और उसमें राइट डाउन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। वर्किंग नोट को हेडिंग दे दो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो 2,50,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो युधिष्ठिर की कैपिटल आएगी 1 लाख। सबसे बड़ा भाई है, डेफिनेटली ज्यादा ही रहेगा। भीम की कैपिटल 75, दुर्योधन की होगी 50,000 और दुशासन की होगी 25,000। चलो ये वर्किंग नोट है। तो सबसे पहले तो चारों पार्टनर्स की कैपिटल जो कि न्यू फर्म में मेंटेन करनी है वो हमें मिल गई। ठीक है, चलो अब ये कैपिटल आपने जो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है उसमें डेबिट साइड सबसे लास्ट में दे दो टू बैलेंस कैरीड डाउन बिकॉज दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल 1,75,000 50 एंड 25। चलो चारों पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस लिख लो। सबसे पहले 1,75,000 50 एंड 25,000। ओके, अब देखो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट हियर। सी युधिष्ठिर की ओपनिंग बैलेंस जो कि आपने क्रेडिट साइड दिखाई है, मैं आपको इलस्ट्रेशन के तौर पे दिखा देता हूं। तो क्रेडिट बैलेंस है 1,250 और डेबिट में हमने क्लोजिंग बैलेंस दी
1 लाख। ठीक है, तो जो भी ज्यादा टोटल है वो दोनों साइड लिखना है। सी हियर 1,0250 इज मोर, तो वो हमें लिखनी है दोनों और 1,0250 और उसमें से 1 लाख माइनस मतलब 250 ट्रांसफर होगा कैश अकाउंट में। इसका मतलब हुआ युधिष्ठिर will withdraw 250 because he has additional capital। जो भी पार्टनर की कैपिटल एडिशनल होगी वो विथड्रॉ करेगा, जो भी पार्टनर की कैपिटल डेफिसिट होगी वो कैश लेकर आएगा। तो इस प्रकार चारों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो। ठीक है, अभी उसकी सेकंड इफेक्ट कॉन्सेंट्रेट हियर। सी हियर इन युधिष्ठिर's capital account 250 appear on the debit side which is to be transferred to cash account। तो हमने जो कैश अकाउंट प्रिपेयर किया है जिसमें आपने डेबिट साइड में बैलेंस दिखाई है 57,000, उसमें ये 250 की एंट्री आपको क्रेडिट में देनी है बिकॉज़ सी ऑलवेज हमारा डबल एंट्री का रूल क्या है, वन एंट्री विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड, अदर एंट्री विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड। तो ये 250 यहां पर डेबिट हुआ तो इट इज टू बी क्रेडिटेड हियर बाय युधिष्ठिर's कैपिटल 250। ठीक है, समझ में आ गया। चलो चारों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो, जो भी बैलेंस आती है वो कैश में ट्रांसफर करो, देन क्लोज डाउन कैश अकाउंट और उसकी बैलेंस फाइंड करनी है आपको। ठीक है, चलो डू इट क्विकली फास्ट। कैपिटल अकाउंट क्लोज करो सबसे पहले। युधिष्ठिर में तो मैंने आपको बताया इतना ही आएगा 250। ठीक है, सेम वे भीम में 90,250 क्रेडिट टोटल इज मोर, 90,250 क्रेडिट टोटल इज मोर, सो 90,250 ट्रांसफर होगा डेबिट साइड। अब हमारी क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 75,000, तो मतलब 15,250 एडिशनल कैपिटल ऑफ बीम। बीम में आपको एडिशनल कैपिटल मिलेगी 15,250 ऑन द डेबिट साइड which is to be transferred to cash account। चलो उसको कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कैश में ट्रांसफर कहां पर होगा, क्रेडिट में। कैपिटल में जो साइड एंट्री आती है उससे कैश अकाउंट में ऑपोजिट साइड एंट्री दो। सो राइट हियर बाय बीम्स कैपिटल अकाउंट 15,250। चलो सेम वे दुर्योधन दुशासन का आपको ही करना है बिकॉज़ आई डोंट नो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दुर्योधन एंड दुशासन। सो डू इट नाउ। उसकी ऑपोजिट इफेक्ट दे दो कैश अकाउंट में। ठीक है, अगर दुर्योधन या दुशासन किसी में से भी डेबिट का टोटल ज्यादा हो तो वो दोनों साइड लिखना है, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से ऐसा होगा दुर्योधन या दुशासन का डेबिट टोटल मोर होगा, तो इट इज टू बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड एंड जो भी डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू कैश अकाउंट। डिफरेंस को कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। चलो केस में ट्रांसफर करके फाइंड आउट दी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ केस। ठीक है, केस की क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर लो। यू विल गेट इट 42
but you will get closing cash balance 42,500 rupees. Close करो. अब देखो सी we are asked to prepare a new balance sheet of the महाभारत brothers. तो जब न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करो तो आपको क्या याद रखना है? देखो एक तो गुडविल पांडव ब्रदर्स की दी गई है 50,000, तो वो न्यू फर्म की बैलेंस शीट में आएगी. बाकी सभी एसेट्स आपको एक न्यू वैल्यू जिसमें अप्रिशिएट हुआ है उसमें ऐड करो, जिसमें डेप्रिशिएट हुआ है उसमें लेस करके न्यू वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दिखानी है. ठीक है. और न्यू वैल्यू बैलेंस शीट में देखो, बाद में कैश अकाउंट की बैलेंस आपको कैश बैलेंस कितनी दिखानी है? 42,500 रुपीस इज टू बी शोन ऑन कैश बैलेंस. और इस प्रकार आपकी बैलेंस शीट भी कैरी हो. ठीक है. तो रिमेनिंग थिंग्स यू हैव टू डू इन होमवर्क. चलो, थैंक यू.